Hello viewers, if you have any doubt or questions on topics that I had discussed earlier in my videos, then feel free to inbox me. My mail ID is running on the screen and the same is given in the description box. Now, today's topic is golden rule and double entry system. First, start with double entry system. What is double entry system? Double entry system of accounting is a scientific system of accounting. As the name suggests, double entry means in each and every transaction which is of monetary value are to be recorded in the books of accounts, and two aspects of any transaction is recognized. One is to be debited and another is to be credited. It means each and every transaction must involve two accounts. Now, what is account? Account is a summary or head of any transaction in any transaction. Two aspects are recognized. One is debited and another is credited. और अकाउंट क्या है? किसी एक पर्टिकुलर आइटम, या तो वो पर्सन भी हो सकते हैं, पर्सन, एसेट, liabilities, expenses, incomes से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं उनके अकाउंट को हम ओपन करते हैं और उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हम उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट अगर ये मेरा एक्सपेंसेस का आइटम है तो रेंट पे जितने भी खर्च हुए हैं वो सारे के सारे रेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी अकाउंट, जितने भी सैलरी दिए गए हैं वो सारे के सारे सैलरी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। Now, account is broadly divided into two groups, personal accounts and impersonal accounts. What is personal account? As the name suggests, personal. It means related to some person. Again, person may be natural person or artificial person. What is natural person? Natural persons are persons which are created by God. Artificial person are persons which are recognized by law or treated as a separate person by business houses or in business transactions. And the third one is representative personal account. It means the account which represent any person. Natural person such as Ram's account, Mohan's account. These are natural person. Artificial person, Tata's account,
ABC Limited account, any other firm's account, company's account, etc. And representative personal account. In representative personal account, examples are outstanding salary or any expenses, outstanding expenses, prepaid expenses, received in advance, etc. तो पर्सनल अकाउंट से अभी क्लियर है कि इसमें 3 तरह के आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. Now, impersonal accounts. Under the head impersonal accounts, again it is divided into 2 heads, real accounts and nominal accounts. Real accounts is again divided under 3 heads, tangible real account, intangible real account and fictitious real account. Now real account. Tangible real accounts, as the name suggests, tangible means which can be touched or seen. For example, furniture account, land account, building account, stock account. These all can be seen or touched. Cash account. These are all tangible real accounts. Now, intangible real accounts. Intangible means which cannot be touched or seen, such as goodwill account, patent account, copyright account, etc. These cannot be touched but have monetary value and evaluated for accounting purposes. Now, fictitious real accounts. Fictitious means which cannot be sold or purchased. These are fictitious real accounts. The examples of fictitious real accounts are preliminary expenses, preliminary expenses account, discount on issue of shares and debentures, account. These are fictitious real accounts. Now, nominal accounts.
nominal, as the name suggests, nominal means नाम मात्र का. It means it has no existence, but these are recognized. No existence means it is not personal, and it is not real. It is nominal. It is recognized because all expenses, losses, incomes, gains must be separately identified. एक्सपेंस, अगर हम बोलें कि एक्सपेंस, इतना एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस हुआ तो मुझे डिटेल्स भी देना होगा कि एक्सपेंस किस हेड में हुआ, सैलरी हेड में हुआ, रेंट हेड में हुआ, या कमीशन में गया एक्सपेंसेस. उसी तरह से इनकम हुआ तो डिस्काउंट रिसीव हुआ, सैलरी रिसीव हुआ, या प्रोफेशनल फ़ी रिसीव हुआ. ये मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, तो इसलिए ये अकाउंट हम खोलते हैं. तो नॉमिनल अकाउंट में दो तरह के आते हैं, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स एंड इनकम्स अकाउंट. नाउ अब हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स. गोल्डन रूल्स मीन्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. The first rule is, it is for personal accounts. Debit the receiver and credit the giver. For an example, XYZ Limited had purchased few goods of value 50,000 from Sohan Brothers. Then purchases account will be debited and Sohan Brothers account will be credited. Here, this account is real account. This is real account, but Sohan Brothers account is personal account. Sohan brothers means artificial person. And the rule is credit the giver. सोहन ब्रदर्स ने 50,000 वैल्यू का आइटम दिया था, तो गिवर हैं ये, गिवर को गोल्डन रूल के हिसाब से क्रेडिट करते हैं. नाउ अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें दूसरे रूल में जाना होगा. रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, 50,000 का गुड्स बिजनेस में आया, और वो कैसे आया, क्रेडिट पर आया था. इसके लिए कैश नहीं दिया गया था, ये क्रेडिट पर आया था. तो परचेजेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. और क्यों डेबिट करेंगे, यहाँ रूल भी है, डेबिट व्हाट कम्स इन. जो गुड्स आ रहा है उसके लिए रियल अकाउंट का जो रूल 2 है वो यहाँ पर आता है. इसके हिसाब से ये फिट है. तो यहाँ हमने अभी क्या नोटिस किया कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर,
कोई ज़रूरी नहीं है ये टोटल का टोटल सेट जो है एक ही ट्रांजैक्शन में अप्लाई होना, ये ज़रूरी नहीं है। ये अभी हम लोग का क्रेडिट द गिवर ये वाला और डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ से सेकेंड रूल से ये वाला, ये दोनों अभी इस ट्रांजैक्शन में अप्लाई हुआ था। अब नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट को भी 2 हेड्स में बांटा गया है, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। The third rule is debit all expenses or losses and credit all incomes and gains. Second example is salary paid. Rupee 65,000. Salary paid. Here in this transaction one item is salary, another is paid. Paid means cash is given. Then salary account is to be debited and cash account is to be credited. Amount is 65,000. यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, सैलरी। सैलरी अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ इस रूल के हिसाब से ये तो डेबिट हम लोग कर रहे हैं, अब किस रूल के हिसाब से कैश को हमने क्रेडिट किया है, तो कैश जो है वो रियल अकाउंट का आइटम है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हियर कैश इज going out from the business, then as per this rule cash is credited. अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे रूप में भी समझेंगे। जिसे हम जानते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूप में। तो ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है, इसमें अकाउंट्स को बेसिकली 5 अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। फर्स्ट इज एसेट्स अकाउंट, सेकंड लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड इज कैपिटल अकाउंट्स, फोर्थ इज एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट्स, फिफ्थ इज इनकम्स और गेन्स अकाउंट। तो अभी हम लोग इसको समझेंगे इंक्रीज और डिक्रीज के रूप में, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इंक्रीज, डिक्रीज। अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट इस रूल से भी मैं कोरिलेट करते हुए चलूँगी। एसेट क्या है, एसेट रियल अकाउंट का आइटम है, तो एसेट में जब भी इंक्रीज होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है, और जब एसेट में डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा।
liabilities, लायबिलिटीज़ में जब इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज़ में जब इंक्रीज होगा तो लायबिलिटीज़ क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और लायबिलिटीज़ अगर कम गया तो वो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल, कैपिटल में इंक्रीज अगर होता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है। कैपिटल में अगर कैपिटल जैसे ड्राइंग्स किया गया, निकाला गया, कम हुआ कैपिटल तो वो डेबिट किया जाएगा। एक्सपेंसेस, और लॉसेस, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो वो डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस अगर कम होता है तो वो क्रेडिट करेंगे। इनकम्स एंड गेन्स, इनकम इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट करेंगे, इनकम अगर डिक्रीज हो जाता है तो उसे डेबिट करेंगे। तो आज मैंने सिखाया दो मेथड्स, डेबिट, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दो तरीके से। एक गोल्डन रूल्स जो 3 गोल्डन रूल्स हैं, एंड ये मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जर्नल एंट्री पर होगा, जिसे हम लोग इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, वॉच माय वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।